Uh, Good afternoon, everyone. Uh, I'm sorry for the technical glitch that happened, so it got delayed by some time. I'm sorry for that. Uh, Before I start the presentation, I'm thankful for the Nation of India, Mr. Piyush Jain, Dr. Sharad, and entire PFI family for giving me this opportunity to talk on importance of sports nutrition. I will be talking more about the nutrition literacy, I would say, because there is a lot been said about the physical literacy part of it. I would like to, emphasize more on the nutrition literacy. Uh, Before I start my discussion, I want to accept one thing that I am an engineer by profession and by qualification. Uh, yes, but what is that that has created interest in nutrition and sports nutrition uh, is specifically, I will mention you in detail about it, that why I am into this field. But one more thing I just wanted to also mention that I am also not a qualified sports nutritionist per se. But for the last 12 years, I have been engaged and involved into the development of sports nutrition in India, directly or indirectly. And I do represent sports science experts who work in isolation. And I have been trying to put all these experts on one single platform for the common goal to develop and long-term athletic development through the support of sports science. With this background, I'm also a part of Integrated Society of Sports Nutrition as a member. Integrated Sports Science Research Association, I am the director there. Maharashtra Wheelchair Basketball Association, I am the founder president for Maharashtra. We have been winners for last 5 seasons. I am also a part active member of Association of Sports Nutrition Fitness Science, which is organizing different expert discussions on sport nutrition and fitness science. I am also a member of PFI, which I am trying to make it more active in times to come. Also, I am the member of Institute of Sports Science and Science as an advisory board. So with all this background, we have been working in this field, in the field of sports nutrition for last 12 years. My wife, she's a nutritionist, and it all started because of my son, who was born as a premature boy. There were a lot of, health issues earlier with him that he was not able to cope up physically of his age. At the age of 8 years, he used to look tiny as 6 or 7 year old. So, being a nutritionist at home, she was always worried that what needs to be done so as to to have the proper growth of a child. And during that time, I think we were lucky that my son got into sports. When he started into sports, there was times when he has to study, he has to train, uh, and he was the nutritional requirements as per his age. तो ये जब सब उसकी डेवलपमेंट हो रही थी, सो ये सब डेवलपमेंट जब हो रही थी तब हमको ऐसे लगा कि जो भी वो खा रहा है इज़ नॉट इनफ फॉर हिज एज ग्रुप एंड so my wife being a nutritionist always tried to balance between his nutrition and his health issues and his studies. Incidentally, she thought that whatever available in the market, just boost, Bournvita or bodybuilding supplements or nutrition will not help. It needs to be a specially formulation that needs to be made for his age. So she started making, and now after 12 years, now he's 20-year-old. He is as fit as athlete. He has been a gold medalist in his skating, and so the sports and nutrition has literally changed the life, and that's the reason we started this company called as Nutra Supplements.
So that was the in brief about why we started this company and an organization. And but being a father and closely working and looking at its development, I always felt that all the experts needs to come together to and for the benefit of a sports person for his total athletic development. And that was the reason I got more involved in sports science and sports nutrition per se. Having said so, we have been working closely for creating the sports nutrition policies for Army Sports Control Board. When the Olympic Task Force was formed, we were the first one to give the draft of sports nutrition policy that needs to be implemented and prepared. We work with Prakash Padukone Academy. We work with a lot of different academies to understand the nutritional need of each and every athlete with reference to his age, height, weight, and nature of game and phase of training. I have been represented India at anti-doping awareness program or the workshop that was organized by Anti-Doping Lab Qatar. I presented a case as doping control in nutrition supplements and Indian perspective. And to my disbelief, the session was attended by WADA Director General Oliver Niggli, who was there during that time, Dr. Ron Megan, who is head of International Olympic Committee as a nutrition head, who are into sports nutrition and doping, knows about these two big names. And that was the time that they appreciated that yes, there is an Indian organization which is working for doping control and in nutrition supplements, and other companies should follow. So it was a big achievement for us as an Indian company. Coming back to our core area, I will be more discussing about the journey and the areas that we have been facing these nutrition challenges, and how we try to bring the the most common methods to eliminate that sports nutrition requirements, and how the performance can be increased, how it can be used as a part of injury prevention techniques, how it can be worked upon, how the sports nutrition planning needs to be there during the rehabilitation part of it. So I will just take a quick journey to all this and more. It will be more into the not the scientific way, but along with science, it's more about the experience for the 12-year journey that I have been witnessing it. There was a Khelo India under the Khelo India, or even before Khelo India started, during World Cup under 17 World Cup football. There was we conducted their sports nutrition assessment and other things under 17 boys. During the same time, Sports Authority of India organized certain events for younger girls to participate in football, and then they created an event which they name as Khelogi to Khilogi. So if you play, you will flourish. तो ये जो बालीवाड़ी में ये इवेंट हुआ, आई वॉज इन्वाइटेड टू टॉक ऑन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फॉर यंगर एथलीट्स, और तब मैंने एक लाइन इसमें उनको रिक्वेस्ट किया कि उसमें एक लाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी है. उनका जो टैगलाइन था ये था खेलेगी तो खिलोगी. हमने उसमें एक लाइन प्रीटेक्स्ट किया, खाओगी तो खेलोगी और खेलोगी तो खिलोगी. If you eat, then only you will be able to play, and if you play, you will flourish. So eating is extremely important, or the nourishment of an athlete is extremely important, not only for his performance, but also for his overall developmental growth. Now, if we look from the point of view of parents,
अगर माता पिता है अपने बच्चों को खेलकूद में क्यों डालना चाहेगा? इसमें से दो चीज़ें हैं कि एक तो बच्चे आजकल जो इडियट बॉक्स है, अभी मोबाइल भी है, they want to keep their child away from these gadgets, so called gadgets, which keep them at home, not allow them to play. और दूसरी चीज़ है कि उसका जो है उसकी जो लाइफस्टाइल है, इट शुड बी हेल्दी। अब क्या होता है कि बच्चा तो खेलना शुरू कर देता है, तो स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, उसका जो स्कूल टीचर्स है वो भी बोलते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा खेल रहा है। फिर वो जब माता पिता को पता चलता है तो वो जो कोचेस है, एक्सपर्ट कोचेस है विद इन द सिटी, उनके पास जाते हैं। ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग देयर ऑल्सो, इट स्टार्ट ट्रेनिंग हार्ड एंड हार्डर डे बाय डे। वो पहले अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से जीतता है। देन ही रिप्रेजेंट्स हिज सिटी, वहाँ पे वो जीतता है। ही रिप्रेजेंट्स स्टेट, वहाँ पे भी जीतता है। ही रिप्रेजेंट्स कंट्री, वहाँ पर भी जीतता है। लेकिन ये प्रोसेस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग पुट इन ऑन ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। इस दरमियान क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है ये कहीं पे वो छूट जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि जब वो एक गेम के बाहर आ जाता है आफ्टर व्हेन ही गेट्स रिटायरमेंट, क्योंकि गेम इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन प्ले फॉर लाइफ लॉन्ग, ऑफ कोर्स फॉर एक्सेप्ट फॉर फ्यू गेम्स। लेकिन क्या होता है कि जब वो गेम से बाहर आता है तो उसको पर कुछ जगह पे परमानेंट इंजरीज हो जाती है, जो लंगड़ाता है, एंड पीठ में उसके दर्द परमानेंटली हो जाता है, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, दिस हैज़ टू डू अ लॉट विद हिज न्यूट्रिशन ड्यूरिंग हिज यंगर एज। जब वो खेल रहा होता है, जब वो बढ़ रहा होता है, तब जो बेसिक एरिया जो हम मिस आउट करते हैं ये है प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो जैसे मैंने कल इंट्रोडक्टरी इसमें कहा था कि अलॉन्ग विथ फिजिकल लिटरेसी देयर इज़ अ नीड ऑफ हैविंग गिविंग मोर एम्फोसाइज ऑन न्यूट्रिशन लिटरेसी ऑल्सो। क्योंकि ये जो हम न्यूट्रिशन लिटरेसी का अर्थ ये है कि जैसे बचपन से लेके तब उसका न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें उसको खाने के लिए और क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, इसके बारे में विथ रेफरेंस टू स्पोर्ट्स आज हम थोड़ी सी इसमें चर्चा करेंगे। जो मेरा अनुभव है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ आर्मी इंस्टीट्यूट्स एंड अदर क्लब्स एंड प्रोफेशनल्स एज फार एज न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न। तो इसमें हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है या न्यूट्रिशन लिटरेसी है, उसको किस माध्यम से हमको ये जानना ज़रूरी है, और पीपी के माध्यम से हम इसको कैसे ग्राउंड लेवल तक या ग्रास रूट लेवल तक हम इसको ले जा सकते हैं। पर ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। Being an engineer, I always try to see that what sports is all about. So मेरे ख्याल से is nothing but an exertion, physical exertion to create some activity. Maybe it is for competitive level, all for entertainment. इसमें जो एनर्जी जो मुझे समझ में आती है, या जो वर्ड जो है, इट्स बेसिकली फिजिकल एक्सर्शन मीन्स रिक्वायर्स एनर्जी। और हमने स्कूल में पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। अगर हमको स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटी करनी है या करनी है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगनी है तो वो हमको कहाँ से आएगी और किस तरीके से आती है। सो ये जो एनर्जी है, इट इज़ बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड एज स्टोर्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज़ अ फिजिकल एक्सर्शन। सो एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू एनर्जी। आपके शरीर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उसके हिसाब से ही आप कितना वर्कआउट या कितना ट्रेनिंग कर पाएंगे, इसके ऊपर पूरा निर्भर है। सो इसीलिए जो नाउ इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द चैम्पियंस आर मेड इन किचन नॉट ऑन ग्राउंड्स। तो इसके कहने का अर्थ यही है कि किस तरीके से हमारा जो खाने पीने का तरीका है, और नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो इन रेगुलर स्कूलिंग एक्टिविटी भी है, तो उसमें हमको खाने पीने की बहुत
ज़्यादा डिटेलिंग या जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं चाहिए रहते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि हमको जो खाने पीने के तरीके हैं उसको हम कैसे प्लान आउट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमारा एज है, जेंडर है, डेवलपमेंटल ग्रोथ है, उसके हिसाब से। इसमें नेक्स्ट लेवल जो है, आई विल नॉट अगेन गो इनटू द डिटेल अबाउट व्हाट इज़ प्रोटीन, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज़ फैट, व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर विटामिन्स, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हम उसका बेसिक जो है वो सब हम जानते हैं कि हमको प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो प्रोटीन है, जैसे 2-3 दिन पहले अपने एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स थे, उन्होंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ हमको जानकारी दी है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में लगभग जब हम पानी निकाल देते हैं बॉडी का, 70% हमारे शरीर में पानी होता है, लेकिन जब हम पानी निकाल देंगे तब जो भी बचेगा तो 70% जो है 70% इज़ प्रोटीन। तो इतनी अहमियत हमारे शरीर में प्रोटीन की है। अब ये प्रोटीन की जो उपलब्धियां है या जहाँ से हमको ये प्रोटीन मिलता है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेस है। इसमें भी मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमको मालूम है किस तरीके से प्रोटीन हमको मिलता है। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जब बात करेंगे तब हमको जो रिक्वायरमेंट है, इट इज़ अबाउट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेकर 2.25 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट तक हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अभी नेचुरल सोर्सेज भी है और जो मॉडिफाइड और अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है इसमें भी है। तो हमने जो ये काफ़ी सारे आर्मी इंस्टीट्यूट के साथ हमने काम शुरू किया, हमने पहले उनका किया स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एनालिसिस। हर एक की बॉडी को खाने पीने के जो तरीके हैं वो हमने अंडरस्टैंड किया, स्टडी किया, और उसके ऊपर से मैं आज बोल सकता हूँ कि जो एटलीस्ट विद इन आर्मी जितने भी लोग हैं उनका जो बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है ये लगभग मैच हो जाता है, या दे आर गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन थ्रू नेचुरल फूड्स। और हमारा भी यही मानना है कि ऑल द फूड शुड बी रिक्वायरमेंट्स है वो नेचुरल फूड से ही मिलनी ज़रूरी है अभी। लेकिन उसका जो टाइमिंग्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट प्रोटीन्स एंड सप्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सप्लीमेंट्स आर सप्लीमेंट्री, इट कैनॉट रिप्लेस योर बेसिक फूड हैबिट्स, बट एट द सेम टाइम if it is required it needs to be supplemented to complement the efforts। जब आप काम कर रहे हो, जब हम स्कूल में एग्ज़ाम के वक्त हमको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसके साथ हमको क्या देते हैं, हमेशा उसके साथ आंसर शीट मिलता है। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा है, आंसर शीट अब हमने बहुत पढ़ाई करके आए हैं तो आंसर शीट पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में हमको क्या लगता है, व्हाट वी डिमांड इज सप्लीमेंट। सिमिलरली अगर हमारे शरीर में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन की हो, कार्बोहाइड्रेट्स की हो, विटामिन्स की हो, मिनरल्स की हो, ये जो रिक्वायरमेंट्स हमारे शरीर की जो लगती है, अगर हम पूरा जो खाने पीने के तरीके से अगर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारा एक्सर्शन ज़्यादा है, हमारा एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, हमारी नीड ज़्यादा है, तो वो हम ट्राई टू बैलेंस कर सकते हैं मैक्सिमम नेचुरल खाने से। लेकिन ये स्पोर्ट्स के लिए मोस्टली ये मुमकिन नहीं होता है, और अगर मुमकिन हो भी जाता है फॉर बाय वे ऑफ नेचुरल फूड, फिर भी जो लगता है रिकवरी के लिए जो न्यूट्रिशंस लगता है दैट नीड्स टू बी इन ए लिक्विड फॉर्म ऑफ इट। ये थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे जब हम क्विकली रिव्यू करेंगे सप्लीमेंटेशन के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी प्रोटीन्स अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा कि सोया प्रोटीन्स है, वे प्रोटीन्स है, नेचुरल प्रोटीन्स है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी से चर्चा करेंगे कि कौन से प्रोटीन सूटेबल किसके लिए है और क्यों है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स अभी जो कि बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो पहले जो एनर्जी हमारे शरीर में जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू या ग्लाइकोजन जो स्टोरेज होता है उसके माध्यम से हमको मिलती है। फैट और प्रोटीन हम काफ़ी हद तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हम अगर ग्रोन अप बॉडी है तो 450 ग्राम से ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं कर सकते। प्रोटीन हम एक हद तक हम स्टोर भी कर सकेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसीलिए जो कहा जाता है कि हमको जो खाना है
ये 4 से 5 बार के ब्रेक में खाना है, ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स का है वो रेगुलरली रिप्लेनिशमेंट हो जाता है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये जो इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है। जो भी स्वीट जनरली लगता है दैट इज़ सिंपल फॉर्म विच इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट ऑन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो इसमें जब हम ट्रेनिंग करते हैं, इसमें जनरली जब आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में हम जब काम कर रहे थे, दे यूज्ड टू गिव ओनली कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स एंड आइसोटोनिक ड्रिंक्स इनिशियली। लेकिन जब हम ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं, अगर हमारा ट्रेनिंग लोड ज़्यादा नहीं है, अगर हम 30 मिनट्स तक या 45 मिनट्स तक एकदम नॉर्मल इंटेंसिटी से हम कर रहे हैं वर्कआउट, तो प्लेन पानी हमारे शरीर के लिए इनफ है। अगर हम 1-1.25 घंटा एक थोड़ी हाइयर इंटेंसिटी से अगर हम काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स जो एक्सटर्नल कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो भी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका शुड नॉट बी मोर देन 8%, यानी जो टेस्ट के लिए मीठा ना हो, लेकिन जो उसकी जो पूर्तता है, जो अगर 100 ml हमारा पानी है तो उसमें मैक्सिमम 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शुगर कॉन्सेंट्रेट उसमें होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा है तब ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है और इट विल डू मोर डैमेज दैन व्हाट इट कैन डू इन अ गुड वे। अगर हमारी इंटेंसिटी 1.5 से 2 घंटा है जहाँ पे हम स्वेटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा सॉल्ट लॉस होता है। सॉल्ट लॉस होने के कारण जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉल्ट हैज़ टू टेक प्लेस इन पैरेलली, तो हमको आइसोटोनिक ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे सॉल्ट्स होते हैं। और अगर हम 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन्स की भी। क्यों? क्योंकि जो रिप्लेनिशमेंट आप कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्लाइकोजन डिप्लेटेड हो रहा है उसको आप एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन आपका एक्सर्शन अगर 2 घंटे से ज़्यादा है तो क्या होता है कि आपके जो जो एनर्जी बॉडी स्टार्ट्स ड्राइंग एनर्जी फ्रॉम मसल्स, ये मसल ब्रेकडाउन होता है। और ये रिकवरी ऑफ दिस मसल ड्यूरिंग एक्टिविटी हैज़ टू बी गेट रिपेयर्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम। इसीलिए अगर आप 2 घंटे के ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप डाल रहे हो, तो उसमें आप बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन लेना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रेनिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू ट्रेन एट व्हाट इंटेंसिटी। तो आपका जो लोडिंग है, जो आपको पीना है या जो खाना है, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंगली। अभी जब हम आर्मी के साथ हमने काम जब शुरू कर लिया कि अलग अलग सेंटर्स में काफ़ी सारे प्लेयर्स वहाँ पे ट्रेन होते हैं, उनके इसमें देखा गया कि सुबह उठ के वो पूरी और चाय उनको दी जाती है, उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेकफास्ट या जो भी खाना है, ट्रेनिंग से पहले एम्प्टी स्टमक ट्रेन करना पसंद करते हैं या उनको कुछ मिलता नहीं। और ये सिर्फ आर्मी की ही बात नहीं है, यहाँ पे कॉमन ऐसा हमने देखा गया है कि स्कूल के बाद जब वो ट्रेनिंग के लिए बच्चा जाता है या कोई भी एक्टिविटी के लिए जाता है, ही नॉर्मली गोज़ एम्प्टी स्टमक। उसको ध्यान नहीं रहता कि उसको कुछ खाने की ज़रूरत है। अब खाना क्यों चाहिए एंड क्या खाना चाहिए प्रायर टू हिज ट्रेनिंग? एक तो एम्प्टी स्टमक हमको ट्रेनिंग नहीं करनी है। फिर काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे जो सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो जो भिगोए हुए चने हैं या आलमंड्स है, वो सुबह उठ के वो खा जाते हैं एंड देन दे गो फॉर ट्रेनिंग। कहना यह है कि वो खाना गलत नहीं है, वो जो खा रहे हैं उसका जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम हर खाने के जो हम खाना लेते हैं उसमें हमको सोचना चाहिए कि इसमें क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है। मुझे ट्रेनिंग के लिए अभी क्या किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। मुझे जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, मेरा बॉडी कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन स्टोरेज से भरा हुआ होना चाहिए। अगर मैंने उसी समय प्रोटीन खाया और फैट खाया तो उसका मुझे ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा उपयोग नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा। सो आई नीड टू प्लान माई न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी बिफोर द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट। सो मुझे अगर मैंने इंस्टेड ऑफ, जब हमने अल्टरेशन में क्या किया कि रादर दैन गिविंग, बहुत ज़्यादा अल्टरेशन तो नहीं कर सकते आर्मी में या जो भी है, तो हमने उनको क्या सजेस्ट किया कि 2 खजूर या जो डेट्स हम जिसको बोलते हैं, वो अगर हम ट्रेनिंग से पहले आधा घंटा और थोड़ा सा पानी वो पी जाएगा
then it will get, it will affect his, it will help him to manage his nutritional needs. उसका इसके हिसाब से हम फिर प्लानिंग कर सकते हैं. तो उसमें कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का जब हम जब बात आती है बिफोर द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट, सो मसल ग्लाइकोजन जो है पहले वो यूटिलाइज हो जाता है. दैन उसका जो ट्रेनिंग के बाद का जो है ट्रेनिंग, व्हेन द ट्रेनिंग गेट्स ओवर, व्हाट हैपन्स इज ऑल योर मसल ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लाइकोजन, कुछ मसल्स भी डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस. और ड्यूरिंग दैट टाइम हमको फिर ये नीड होती है कि वी नीड टू गेट इमीडिएट रिकवरी. आज मैंने ट्रेनिंग किया है, इफ़ आई हैव टू ट्रेन इन द सिमिलर मैनर द नेक्स्ट डे, मेरा न्यूट्रिशनल रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है. एंड इट कैन एडिक्वेट, उसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट जो लॉस आउट हुआ है, इट हैज़ टू बी रिप्लेनिश्ड इन अ प्रॉपर वे. उसका उतना जो रिक्वायरमेंट हमारे शरीर से जो ड्रेन आउट हुई है उसको हमको रिप्लेनिशमेंट करना है. रिप्लेनिशमेंट के लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगेन यू कैन हैव 1 or 2 डेट्स, हाफ अ बनाना और फुल बनाना, और लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रोटीन. अभी इसमें बेसिकली लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रोटीन ही क्यों? क्योंकि जब हम डैमेज होता है, जब हमारा शरीर वर्कआउट करके उतनी मसल डैमेजेस हो जाता है, उसको रिकवरी के लिए अगर हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया तो जो डैमेज हुआ है ऑलरेडी, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर एंड रिपेयर. लिक्विड प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम सॉलिड प्रोटीन कोई भी खाते हैं हम, तो इट विल टेक्स अबाउट normally 3 to 4 hours for his digestion. Till that time the damage is already done to the what you say damage is already done to our muscle. तो इसीलिए हमको जो है इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड आउट प्रॉपरली कि आपको ट्रेनिंग के बाद क्या खाना चाहिए, किस लिए खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है हाइड्रेशन की. ना हाइड्रेशन मेरे हिसाब से पानी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे जो वर्कआउट करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं उसके दरमियान. साइंटिफिकली बताया जाए तो 2% ऑफ डिहाइड्रेशन कैन इफेक्ट और रिड्यूस द परफॉर्मेंस बाय 28%. अगर आप प्यासे हैं, आपकी प्यास लगी है और आपने पानी नहीं पिया है, तो आपका जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है इट गेट्स रिड्यूस बाय 28%. अभी साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि आपको आज 6 से 7 ग्लासेस पानी पीना चाहिए, आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए. ये थ्योरेटिकल बातें सब कुछ है, बट हाउ टू प्रैक्टिकली मॉनिटर द थिंग्स. कैसे मैं कैलकुलेट करूँ कि मैंने 6-7 गिलास मुझे पानी पीना है. काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, particularly for the athletes who are generally training. उनको स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, ट्रेनिंग भी करना है, तो उतना मॉनिटर नहीं कर पाते. तो हमने सजेशन काफ़ी सारे आर्मी इंस्टीट्यूट में दिया है कि जो यूरिन चार्ट आता है, यूरिन कलर चार्ट, जो हम जनरली हमको मालूम है थियोरेटिकल, इसमें कि ये इफ़ यू मॉनिटर योर यूरिन कलर्स, सो इट विल गिव एन इंडिकेशन. मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% फुल प्रूफ है ये. अगर आप बी कॉम्प्लेक्स की गोली ले रहे हैं तो ये ज़्यादा पीला कलर की आपकी यूरिन होती है, लेकिन ऑन अ नॉर्मल कंडीशन इफ़ योर यूरिन इज़ येलो और डार्क येलो, दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड. और हमने काफ़ी जगह पे ये भी किया है कि जब यूरिन चार्ट तो हमने लगाई है यूरिनल्स में, मेरे ख्याल से जो स्कूल टीचर्स है उनको ये इजीली इम्प्लीमेंटेबल एक्टिविटी है कि जहाँ पर भी भले वो स्पोर्ट्स है नॉन स्पोर्ट्स वाले हैं, हमारे यूरिनल्स में ये चार्ट होना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन मॉनिटर द यूरिन कलर. और इमीडिएटली उतना ही नहीं, उसके बाहर जो है पानी की जो अरेंजमेंट है वो भी करना उतनी ही ज़रूरी है, ताकि अगर उसको लगेगा कि उसकी येलो और ज़्यादा डार्क येलो यूरिन है तो ही कैन कम एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर देयर एंड देयर इटसेल्फ. सो पानी हमने जब एक्टिविटी के वक्त जब हम स्कूल में पर्टिकुलर ये इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है कि एवरीबडी शुड कैरी देयर वाटर बॉटल व्हेन एवर दे आर गोइंग फॉर PT एक्टिविटी.
या फिर जो स्कूल के बाद जो गेम्स होते हैं उनको भी वहाँ पर भी पानी की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और इसके बारे में भी कुछ सवाल नॉर्मली जो आते हैं। मैं तो आपने जो सवाल जो पूछा है, इसमें हम डेफिनेटली उसको इसके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन जो कॉमनली पूछे जाने वाले जो सवाल है, मैं दो चार सिर्फ आपको बता देना चाहता हूँ। जनरली लोग ग्लूकॉन डी टंग पे रखते हैं जस्ट कंपटीशन से पहले। लाइन पे लड़का खड़ा है, उसके माता पिता आते हैं, उसको शहद चखा देते हैं या ग्लूकॉन डी वो ड्राई पाउडर के फॉर्म में खा जाता है। हमको, जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट हैज़ टू बी इट हैज़ टू बी मॉनिटर प्रॉपरली। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो भले ही हमको लगता है वो खाने से हमको इमीडिएटली एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन उसका जो लाइक इंसुलिन लेवल जो शूट होता है हमारे शरीर में, वो ज़्यादा घातक होता है रादर देन गिविंग इट्स प्रॉपर रिजल्ट्स टू दैट। विल ईटिंग पोटैटो एंड राइस इंक्रीज माई वेट? ये काफ़ी लोग पूछते हैं। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में है वो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, राइस एंड पोटैटो। जनरली उनको लगता है कि उनको वेट बढ़ेगा। लेट मी टेल यू कि ये दोनों में फैट ज़ीरो है। इसमें बेसिकली दे आर गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने पहले बताया कि 450 ग्राम्स ही हमारे शरीर में स्टोर करने की कैपेसिटी है। अगर वो एक्सेस हम लेते हैं और हम अनयूटिलाइज करते हैं, सो दैट कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। सो दैट हैज़ बेसिकली वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली कि हमको किस लिए हम ये सारे चीज़ें जो हम अभी बात कर रहे हैं, हाउ इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इफेक्टिवली यूज उसका कैसे होना चाहिए। राइस एंड पोटैटो आर एक्सट्रीमली गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसको हमको कटौती नहीं करनी चाहिए, लेकिन येस डेफिनेटली हम उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उनको लगता है कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हम ज्वार या बाजरा की जो रोटी है वो खा लेंगे। उसके लिए साइंटिफिक जो रीज़न है, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूट्रिशनिस्ट आजकल मिलेट्स रिकमेंड करते हैं, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, कॉर्न की रोटी, ये जो है मिसी रोटी, एज अगेंस्ट गेहूँ। तो इसका कारण ये नहीं है कि गेहूँ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है और बाकी इसमें नहीं है। बेसिक कारण ये है कि जो गेहूँ है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के कारण उसमें जो एक ग्लाइडेन एक एलिमेंट होता है जो हमारे स्पोर्ट्स रिकवरी के लिए हैम्पर करता है। हमारे जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसीलिए मिलेट्स का रिकमेंडेशन, ये ज्वार है, बाजरा, इसका रिकमेंडेशंस आज कल बहुत ज़्यादा उसका रिकमेंडेशन है, यूज़ है। तो हमको इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि अगर मैं रोटी 4 खाता तो जो ज्वार या बाजरे की जो रोटी है वो मैं ज़्यादा खा लूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी हम ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी हमारा वेट बढ़ेगा। लेकिन डेफिनेटली उसका जो रिकवरी प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ इट्स एब्सेंस ऑफ ग्लाइडेन इन मिलेट्स, दैट पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। अभी बेसिक जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हम उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, रोल ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। कि अगर हम ये सब प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, हाइड्रेशन, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है हमारे शरीर में, किस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, ये हम थोड़ा सा हम देखेंगे अभी। अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग प्री लोडिंग सेशन में अगर हमने अच्छी तरीके से लिया है, तो हमारा जो ट्रेनिंग फटीग है वो डिले हो जाता है। उसको जो हमारी जो थकावट है वो डिले हो जाती है, हम ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाते हैं। रिकवरी, जैसे मैंने बोला कि रिकवरी इसमें पहले आज मैंने ट्रेनिंग किया है, कल मुझे सेम इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग करना है, तो मेरी न्यूट्रिशनल रिकवरी इसमें बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम ऑप्टिमाइज़ अपना न्यूट्रिशन करेंगे तो हमारी रिकवरी भी इसमें मददगार साबित होगी। इम्प्रूव्स बॉडी कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है। कंसंट्रेशन से एक किस्सा याद आता है, या जो एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर स्पोर्ट्स। हम जब अंडर 17 के लिए जब काम कर रहे थे फुटबॉल टीम के साथ, तब
किसी ने उनको जो उनके साथ एक एक्सपर्ट भी था, ऑफकोर्स ही वॉज नॉट इनटू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ इट, बट उसने कीटोजेनिक डाइट रिकमेंडेशन दिया था अंडर 17 बॉयज़ के लिए। तो वी वर शॉक्ड कि अंडर 17 कीटोजेनिक डाइट है जहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा एकदम से कम कर देते हैं और फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं खाने में। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नया स्टडी ऐसा है कि अगर फैट बर्निंग कैपेसिटी अगर हम अच्छे रखते हैं तो एंड्योरेंस कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स अभी जो है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उसके स्पोर्ट्स के हिसाब से होनी चाहिए। और जो अपना दिमाग चलता है, दिमाग के लिए जो एनर्जी लगती है उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ही हम हमारे दिमाग को जो एनर्जी चाहिए उससे मिलती है। जो बेसिक एनर्जीज लगती है जो पूरे वर्कआउट के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ हमें, जो भी गेम्स हम खेलते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की एक अहम भूमिका है। चाहे वो परफॉर्मेंस के लिए है, चाहे वो इंजरी प्रिवेंशन के लिए है, चाहे वो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है। तो हम उसको ज़ीरो कार्ब या मिनिमम कार्ब जो है, भले ही वो आप एक रिनाउंड व्हाट यू से समझे हुए एथलीट है या 25 ईयर्स के आप हो, फिर भी इफ़ यू आर इनटू एक्टिव स्पोर्ट्स वी विल नॉट रिकमेंड, इट शुड नॉट बी रिकमेंडेड टू हैव केटोजेनिक डाइट स्पेसिफिकली इफ़ यू आर इनटू एक्टिव स्पोर्ट्स। तो ये बात हमको याद रखनी है। अभी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, इट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली वेरियस फैक्टर्स। जैसे एज है, 3 से 8 साल का बच्चा, आजकल तो अर्ली गेम शुरू होता है। जैसे हमने मैडम से कल सुना है कि वी नीड टू देयर इज़ एन एक्टिव स्टेट, दैन देयर इज़ अ फन स्टेट, दैन इज लर्न टू ट्रेन, ट्रेन टू ट्रेन, ट्रेन टू कॉम्पीट, ट्रेन टू विन। इतने सारे हमारे जो डेवलपमेंटल फेजेस है, इसमें हर फेजेस में हमको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 3 साल से लेकर 6 साल तक हमारा जो है एक्टिव स्टेट है या फंडामेंटल जहाँ पे हम सीखते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ टाइम व्हेन वी अलॉन्ग विद फंडामेंटल्स ऑफ अ स्पोर्ट और एनी फिजिकल एक्टिविटी वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड फन इज़ बेसिकली फूड एंड न्यूट्रिशन का अवेयरनेस बच्चों को होना ज़रूरी है। उनको क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, क्यों खाना है। अगर वो एक्टिविटीज़ जो करता है उसके पहले, उसके बाद में, उसके दरमियान हमारा जो उसका न्यूट्रिशन पॉलिसी है ये हमको स्पेसिफिकली गाइड होना जरूरी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, न्यूट्रिशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन जेंडर, मेल एंड फीमेल, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर एट दी प्यूबर्टी एज। बेसिकली 8 to 15 ईयर्स जो डेवलपमेंटल एज है, इसमें लड़का और लड़की ये इनमें फिज़िकल डेवलपमेंट्स अलग अलग होती है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एक्टिविटी है, ये भी हमको ध्यान में रख के उनका न्यूट्रिशन प्लानिंग करना ज़रूरी है। अभी केविन क्लाउड जो डॉक्टर है, इज़ इनटू एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का हेड है एट इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। उन्होंने 400 लड़कियों का भी टेस्ट रिसेंटली किया, ही डिड अ रिसर्च पेपर ऑन इट। और चाहे उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हो, फटीग हो, उनके पीरियड्स हो या बाकी जो परफॉर्मेंस हो, इसका जो को रिलेशन उन्होंने जो निकाला है, दैट वाज बेसिकली अ बिट ऑफ शॉकिंग। क्योंकि आउट ऑफ 400 almost 90% of the girls were facing some or the other nutrition deficiencies, and which was showing the negative impact on their performances. So after that, being a nutritionist and exercise physiology expert, he manipulated their nutrition, and within 3 months he was able to get a good result, which was showing the physical developmental growth along with the performance by just altering the nutritional need of those girls. So न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस पर्टिकुलरली एडल्ट्स एंड गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ज़्यादा, या बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ से हमारा एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और स्पोर्ट्स में ड्रॉप आउट भी मेरे ख्याल से इसी दरमियान होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा लोड जो है, एक्टिविटी है, वो इस दरमियान ले नहीं पाता है। दैन नेचर ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अगर मैं स्प्रिंटर हूँ और मैराथनर हूँ, तो स्प्रिंटर के लिए मेरी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर मैं मैराथन, दोनों केसेस में तो मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी जो न्यूट्रिशनल नीड है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो मेरी अलग अलग है। अगेन इट बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी सिस्टम
दैट स्पेसिफिक गेम इज़ रिक्वायर्ड, उसके हिसाब से हमको हमारा न्यूट्रिशन प्लान करना है. जैसे स्प्रिंटर है, 100 मीटर्स जैसे दौड़ है, दैट इससे 10 से 12 सेकंड में वो कंप्लीट हो जाती है. सो इसमें एटीपीसी की जो एनर्जी सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है, जहाँ पे क्रिएटिन और प्रोटीन की जो स्टोर्ड रिक्वायरमेंट है वो यूटिलाइज होना ज़रूरी है. 100 मीटर दौड़ से पहले अगर आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, तो उसका इफेक्ट आपके रेस पे नहीं होगा, क्योंकि जो भी क्रिएटिनिन लेवल आपके ऑलरेडी स्टोर्ड है वही यूटिलाइजेशन, उतना ही ग्लाइकोजन आपके शरीर में स्टोर होगा, उतना ही मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होगा, और उतना ही जितना इसके लिए. तो जस्ट बिफोर 100 मीटर रेस इफ़ यू ट्राई टू ड्रिंक प्रोटीन और अदरवाइज, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है. लेकिन वही बात अगर आप मैराथन रन कर रहे हो, इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, गुड अमाउंट ऑफ फैट बिफोर द ट्रेनिंग, बिफोर द कंपटीशन, तो यस, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. यानी कोई भी आपका न्यूट्रिशन प्लानिंग है, इट डिपेंड्स अ लॉट अपॉन व्हाट काइंड ऑफ गेम दैट यू आर इनटू, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स यू आर इनटू. इसमें अगर फेज़ ऑफ ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन होता है, क्योंकि हमारे जो फेजेस ऑफ ट्रेनिंग है हमने उस पर 4 इसमें डिवाइड किया है. ट्रेनिंग फेज़, प्री कंपटीशन, कंपटीशन और पोस्ट कंपटीशन, ये चारों फेजेस में हमारी जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है ये अलग अलग होती है. ट्रेनिंग के दरमियान मेजरली हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमको एक लेवल पे होती है. प्री कंपटीशन के दरमियान जो 3-4 दिन पहले का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमको ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ाना होता है. उस दरमियान अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना फ़ायदा हमको अगर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग में अगर हम करते तब होता है. ड्यूरिंग कंपटीशन अगेन कितना हमके अपने पास टाइम है, 2 बाउट्स के अंतर या 2 मैचेस के अंतर, कितना टाइम पीरियड हमारे पास है. अगर 2 घंटा है या 2 कंपटीशन के बीच में 2 घंटे का अगर अवधि है, तो हमको बेसिकली बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना ज़रूरी है. उसमें 4 से 6 घंटे का अगर वक्त है, तो इसमें हमारा जो फूड इनटेक है उसमें अगेन क्वांटिटी शुड बी मोर. अगर हमारे इसमें आधे घंटे का ही सिर्फ टाइम है, तो मे बी अ बाइट ऑफ एप्पल, मे बी 1 or 2 dates, maybe some energy sports drink, I would say, not energy drink, sports drink will help them to recover and be prepared for the next match. तो phase of training is equally important. पैरा ओलंपियंस जो भी व्हील चेयर बाउंड प्लेयर्स है या पैरा ओलंपियंस है, उनके लिए भी गेम्स अलग अलग होता है. उनके लिए जो नीड है, न्यूट्रिशनल नीड है, ये अलग अलग होती है. इंडिविजुअलाइज हमको उसका प्लानिंग करना ज़रूरी होता है. स्पेशल स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक में काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि वी आर वर्ल्ड नंबर 3 इन स्पेशल गेम्स. जो ऑटिज़म है या जो भी है, ये काफ़ी सारे जो बच्चे हैं दे प्ले एंड उनकी जो मोटर क्वालिटीज़ है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स इट गेट्स एक्टिवेटेड, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स खेलना. लेकिन वो जो परफॉर्म करते हैं एट एलीट लेवल, आई थिंक इंडिया इज़ नंबर 3 इन द मेडल टैली इन द वर्ल्ड स्पेशल गेम्स. तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनकी अलग अलग होती है, क्योंकि उनका जो फैट बर्निंग जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है. मेटाबॉलिज्म उनका लो होता है, काफ़ी इसमें हाई होता है. सो वी नीड टू मॉनिटर एंड वर्क अकॉर्डिंगली. बाद में हम आते हैं कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और जब हम डे टू डे एक्टिविटी हम करते हैं ना, व्हाट नीड्स टू बी प्लान. अगर हम डेली एक्टिविटी, प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ये न्यूट्रिशन प्लानिंग कैसे डिपेंड होता है बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज़ दैट यू आर गोइंग टू डू. फॉर एग्जांपल, आज मैं कल सुबह अगर मैं इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे का मुझे इंड्योरेंस ट्रेनिंग है, and if I try to sleep empty stomach the night before, or if I am having a good amount of protein the night before, will not help me much. It will have a counter effect. इससे against, if I have a complex carbohydrate dinner a night before my endurance training with a good amount of fat, so that will help me for a better endurance training the next day. अगर मैं strength training कर रहा हूँ आज,
So during the training, I need to have proper, proper carbohydrate drink या प्रोटीन टू कार्ब रेशो जो भी है वो होना चाहिए। और ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद का जो खाना है, इफ़ इट इज़ प्रोटीन रिच, चाहे वो चिकन है, मटन है, अंडा है या दाल है या जो भी वेज नॉन वेजिटेरियन एक्टिविटी जो खाना है, वो अगर हम खाएंगे तो हमारा जो रिकवरी है, प्रोटीन रिकवरी ज़्यादा अच्छे से होगी। इसका मतलब यह है कि जो हम प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट का जो खाना है, इट ऑल्सो हैज़ टू बी प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड अकॉर्डिंगली। हर सेशन के लिए हमको न्यूट्रिशन का प्लानिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो हमने देखा है कि इतने सारे एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन डिपेंड अपॉन हाइट, वेट, नेचर ऑफ गेम, फेज ऑफ ट्रेनिंग, जेंडर, प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट। तो इतने सारे अगर वेरिएशंस है तो इसको कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एनालिसिस प्रोग्राम, जिसमें हम तीन दिन का डाइट रिकॉल लेते हैं, उसका हाइट, वेट, नेचर ऑफ गेम, फेज ऑफ ट्रेनिंग, उसका खाने पीने का जो तरीका है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसके बाद में उसका जो न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट्स है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, डिपेंडिंग अपॉन स्पोर्ट्स, उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है, उसका बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन प्लानिंग, जो बेसिक फूड है, उसका प्लानिंग प्रॉपरली करना चाहिए, ताकि जो डिफिशिएंट आया है, जो भी कमी आई है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें उसको हम नेचुरल फूड से कैसे उसकी पूर्तता की जाए, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हमको रिक्वायरमेंट है, देन इट कम्स ऑन टू द सप्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट। बेसिकली न्यूट्रिशन प्लानिंग ऑल्सो बिकम्स मोर क्रिटिकल फॉर जूनियर एथलीट्स, क्योंकि जूनियर एथलीट जो है, जूनियर आई मीन टू से 8 साल से लेके 15 या 17 साल तक का जो एथलीट है, उसका रिक्वायरमेंट और क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ही इज़ ग्रोइंग ऑल्सो, ही हैज़ टू प्ले ऑल्सो, ही हैज़ टू परफॉर्म ऑल्सो। अगर उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लानिंग अगर नहीं है तो उसकी जो ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, उसका जो परफॉर्मेंस, ओवरऑल डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है। काफ़ी सारे बच्चे, पेरेंट्स आते हैं कि बच्चों की हाइट ही नहीं बढ़ती है, दे आर ट्रेनिंग हार्ड, दे आर विनिंग ऑल्सो, बट एक डेवलपमेंट ग्रोथ जैसे स्टॉप हो गई है, ऐसा लगता है। उसके बाद में जब वो ग्रोथ हैम्पर होती है, दैन दे आस्क फॉर कि उसको सप्लीमेंटेशन चाहिए। तो इसमें सप्लीमेंटेशन स्पेसिफिकली सप्लीमेंटेशन से ज़्यादा उसका जो न्यूट्रिशन जिसको न्यूट्रिशन जो मिल रहा है, सो वो इट हैज़ टू बी एडिक्वेट, सो दैट जो बाकी बचा हुआ जो शरीर में जो स्टोर किया हुआ न्यूट्रिशन है, उसके हाइट के लिए या जो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन अवॉइड इंजरी प्रिवेंशन में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। जैसे परसों डॉक्टर साहब ने एक बताया था कि स्ट्रेस इंजरीज़ और ट्रेनिंग इंड्यूस्ड इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती है आजकल। तो इसका जो मेन कारण है, अगेन न्यूट्रिशन हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले। अगर हम न्यूट्रिशन में ट्रेनिंग के पहले, अगर हमारा क्या होता है कि ट्रेनिंग जब शुरुआत करते हैं तो मसल ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है, मसल से फिर प्रोटीन से आपकी एनर्जी, मसल से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। और ये जब रिपीटेडली होता है तब आपका मसल स्ट्रेस फ्रैक्चर से हम ट्रेनिंग इंड्यूस्ड इंजरीज़ को आपको हो जाती है। तो अगर हम प्री ट्रेनिंग के वक्त अच्छा सा कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या डेट्स या बनाना, इस तरीके का अगर हम खाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की जो गति है या जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम लेट या डिले कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हमारे इसमें खाने में कैल्शियम है, विटामिन डी है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारा इंजरी में प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, रिहैबिलिटेशन में भी सप्लीमेंट्स का या न्यूट्रिशन का बहुत हमको एक ध्यान रखना है। बेसिकली जब आप इंज्योर होते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है ना, वो नॉर्मली हाई हो जाता है। तो इसीलिए आपकी भूख कम हो जाती है, लेकिन मेटाबॉलिक रेट आपका हाई हो जाता है, आप खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जो प्रोटीन और जनरली जो अर्जिनाइन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है इफ़ यू आर हैविंग सम क्रिटिकल जो का
व्हाट यू से इंजरी हुई या बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो इसकी वजह से हमको इवन प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन एक्सेलरेट द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इफ इट इज़ टेकन प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली। क्विकली मैं ये करूँगा कि स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये डोपिंग कंट्रोल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। ये बहुत अहम मुद्दा है कि जो भी सप्लीमेंट्स हैं 90% और काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं ये डोप फ्री सर्टिफाइड नहीं होते हैं। बेसिकली इसमें जो है अथॉरिटी जो है, जब काफ़ी सारे कंपनीज़ वो सिर्फ लिखती है कि डोप फ्री फार्मूला या हम बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इट इज़ डोप फ्री सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली सर्टिफाइड एंड उसमें 6 लैब्स है ग्लोबली हु सर्टिफाइड्स सप्लीमेंट्स एज अ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़, और इसमें बहुत डिटेल के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो 485 एलिमेंट जो वाडा ने बैन किए हैं उसकी यूटिलाइजेशन और उसका सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, उसका टेस्टिंग होना ज़रूरी है। 185 एलिमेंट्स है जो विच इज़ वर्क एज अ ड्रग्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, वो भी चेक किया जाता है। इट हैज़ टू बी ऑल्सो चेक्ड फॉर एज वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द सप्लीमेंट्स और नॉट। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वन ऑफ दैट इज़ बैन सब्सटेंस कंट्रोल ग्रुप इज़ कैलिफोर्निया से है, वो जनरली ये सर्टिफिकेशन इशू करती है। दिस इज थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ गेटिंग डोप। इट डजेंट से दैट इट 100% श्योर कि उसके वजह से 100% आप डोपिंग में नहीं आओगे, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अगर हम करेंगे तो उसकी जो रिस्क फैक्टर है it minimizes a lot. I think time is about to end, and I would like to answer a few questions which I am seeing on the screen quickly. I am sorry because time ज़्यादा spend इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि right from न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से डोपिंग कंट्रोल तक 1 घंटे में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट नेवरदलेस I will take a few questions quickly. अविनाश कुमार जी ने पूछा है, रिपीट द प्रोटीन इनटेक आफ्टर स्टेनिस सेशन फॉर बैडमिंटन प्लेयर, क्वांटिटी एंड टाइम लिमिट। तो बेसिकली अपनी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, इट हैज़ टू बी टेकन विद इन 45 मिनट्स। अगर आप एलीट लेवल पे है 19+ ईयर्स के है, देन we would require protein isolates particularly for the faster recovery of your muscles, and it has to be taken within 45 minutes. What is the substance in wheat that hampers recovery? ये साहब ने पूछा है, आनंद साहब ने। तो जैसे मैंने बोला कि ग्लाइडिन एंड जो एक एलिमेंट है व्हीट में विच रिस्ट्रिक्ट द रिकवरी आफ्टर हैविंग व्हीट सब्सटेंसेस। सो इट इज़ बेसिकली जो पुराना व्हीट था उसमें ये इतना मात्रा नहीं थी, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड लास्ट 50 साल में व्हीट हैज़ बीन मॉडिफाइड अ लॉट, तो उसके कारण ये काफ़ी सारे जो अनवांटेड एलिमेंट्स है ये उसमें इंकॉर्पोरेट हो गया है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट फुल्ली। इंद्रजीत साहब ने पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हैव टू टेक फॉर अराउंड 14 ईयर मेल चाइल्ड। तो मैंने जैसे बताया कि इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट, कौन सा वो गेम खेल रहा है, कितनी एक्टिविटी वो कर रहा है, कितने घंटे वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो वी हैव टू अंडरटेक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एनालिसिस प्रोग्राम फॉर द सेम, और न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी के माध्यम से हम आप कर सकते हैं। एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फिटनेस साइंस, इसमें क्वालिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट का ग्रुप है ये, अलॉन्ग विद अदर फिटनेस साइंस एक्सपर्ट्स ऑल्सो। तो आप जहाँ पर भी है आप उसको सर्च कर सकते हैं, यू विल फाइंड अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट वेयर यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। एंड अगर आप मुझे आपके बच्चे का हाइट, वेट, नेचर ऑफ गेम, फेज ऑफ ट्रेनिंग ये बताएंगे ईमेल से, तो मैं इसको आपको डिटेल भी मैं भेज सकूँ। बाकी और स्पोर्ट्स पीपल, डोंट यू थिंक एल्डरली पीपल ऑल्सो नीड सप्लीमेंट्स? मोहनलाल चौधरी साहब ने पूछा है, येस डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट
एल्डरली पीपल ऑल्सो नीड सप्लीमेंट्स, पर्टिकुलरली क्योंकि उनका जो कैल्शियम लेवल्स होता है या जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती है, ये बढ़ तो नहीं जाती, लेकिन जो रिक्वायरमेंट जो खाने पीने से पूर्तता नहीं होती है, क्योंकि अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी है तो हमारे घर में किसी के भी घर में 7 दिन नॉनवेज नहीं बनता है, हालांकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी रोज़ की होती है. सो येस, देर इज़ अ acute नीड ऑफ supplementation for elderly people, but that again has to be taken under the guidance of a certified dietitian or a nutritionist particularly. Label reading, Aparna More is asking, label reading is absolutely important, especially when it comes to sports supplements. Yes, definitely, because there is a lot of misconceptions and misinformation that has been spreading. लेबल इंडिया में स्पेसिफिकली काफ़ी सारे इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स भी है जो लेबल पे नहीं कहते कुछ, लेकिन अंदर उसके लिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो डोप में पाए जाते हैं. तो हमको ये जानना ज़रूरी है. ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो वर्किंग क्लोजली विद FSSI to have some specific marking on the label which are specifically for a sports supplements per se. जैसे रेड डॉट नॉनवेज के लिए होता है, ग्रीन डॉट वेज के लिए होता है. सिमिलरली FSSI इज़ कमिंग अप विद अ मार्क विच विल से दैट इट इज़ रिकमेंडेड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. तो हमने ये रिकमेंडेशंस 2018 में FSSI के कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद ने दी है, एंड इट हैज़ बीन टेकन अप बाय देम. आई थिंक इट विल बी इम्प्लीमेंटेड सून. प्रदीप साहब का पूछना है, सर हाउ इज़ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज़ डन. So carbohydrate loading is specifically in two form. You need to have the complex carbohydrates, जैसे you need to cut down on your protein and fat part of it, increase wheat है का बनाना है, पोटैटो है, ये आपको ज़्यादा खाना चाहिए ड्यूरिंग प्री कॉम्पिटिशन फेज़. इससे आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है. So you need to focus more on the complex carbohydrate during the loading phase. नितिन राठौड़ साहब पूछते हैं, विच डाइट टेक्स फॉर ताइक्वांडो कंपटीशन. अगेन एज आई मेंशन, कोई भी कंपटीशन हो, बेसिकली वी नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग ड्यूरिंग कंपटीशन, प्री कंपटीशन. दो ताइक्वांडो के बाउट में कितना अंतर है, लेकिन एवरीवेयर बेसिकली ड्यूरिंग द कंपटीशन आई थिंक कार्बोहाइड्रेट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली. सिंपल कार्ब हमको ज़रूरत है तो लेनी है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन 8% से ज़्यादा नहीं होना है. अगर फ्रूट जूस भी आप लेते हो तो इट हैज़ टू बी डाइल्यूटेड 1:3. एक गिलास में 3 गिलास पानी आपको ऐड करना है, बाद में वो जूस फ्रूट जूस आपको देना है इफ़ यू आर टेकिंग ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन पार्ट ऑफ इट. And I think time is getting over. I think you can write to us by on PFI's Facebook. Also, PFI does have my email address and phone number, and you can write to me. Whatever queries that you are having, I will be more than happy to resolve your question and answers. Last but not the least, I think PFI, I am also an active member and trying to be more active as far as PFI member is concerned. मैं सुझाव डेफिनेटली दूंगा PFI community as committee to have a sports science committee as a separate community or a committee where we can have a standard guideline, awareness program, workshops जहाँ पे हम conduct कर सकेंगे. जैसे हमने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ बनाई है अलग अलग स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए, वैसे ही हम PFI के माध्यम से स्पोर्ट न्यूट्रिशन पॉलिसी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये भी हम अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम ये बनाएंगे, और जल्दी ही मेरे ख्याल से ये अवेलेबल भी हम कर सकेंगे. Development through physical training and sports science is another activity that I think PFI and we as a sports science community can take up, and to take up PFI's objective of complete solution through education to execution for excellence through fitness and sports science. I think that is exactly what PFI wants to work on a long run. And to sum up, I would say again want to re-mention about
that physical literacy is possible only if we are able to give adequate importance to nutrition literacy. मेरे ख्याल से physical literacy and nutrition literacy goes hand in hand, and we need to work together and to create, if you want to work on the more fitter India, I think it has to be healthier India, and to be healthy you need to eat healthy. Thank you so much, Pifi, once again for giving this opportunity. Thank you and Jai Hind.